Welcome to Barakpur Senate Public School. Hello everyone, myself Moumita Ghosh-Dostidar, Assistant Teacher of Biology. आप लोगों के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो लाई हूँ. इस वीडियो में मैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी. All animals, including human beings, depend on plants for their food. Hence, they are called heterotrophs. लेकिन हम लोगों को सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. तो वो खाना कैसे बनाते हैं हम लोग ये जानेंगे फोटोसिंथेसिस से. डू यू नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड to create oxygen and energy in the form of sugar. Green plants have chlorophyll, which trap the energy of sunlight. It is present in the chloroplast. Do you know photosynthesis का equation क्या है? Photosynthesis में carbon dioxide and waters are used as a substance, and after the chemical reaction, plant produces glucose and oxygen. In the process of photosynthesis, green plants absorb water from the soil with their roots. The water is transported to the leaves where carbon dioxide also enters through the small pores of the leaves. क्या किसके लिए? For the process of photosynthesis. And इसके साथ साथ plant को sunlight भी चाहिए. तो in the presence of sunlight, the chemical reaction called photosynthesis occurs. And photosynthesis के बाद क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? In the process, glucose and oxygens are formed. Do you know respiration and photosynthesis में स्टोमाटा का काम क्या है? स्टोमाटा क्या है? कहाँ पे रहते हैं? Stomata are tiny holes found in the underside of the leaves. Each stoma is surrounded by two kidney-shaped guard cells. The guard cell controls the opening and closing of stomata. एक स्टोमाटा में बहुत सारे पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, गार्ड सेल एंड सेल वॉल. Each stomata controlled water loss and gas exchange by opening and closing. They allow water vapor and oxygen out of the leaf and carbon dioxide into the leaf. The bright light the guard cell take in water by osmosis and become puff and turgid. फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. जो फैक्टर्स का कम या ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो सकते हैं. तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दोज आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. बहुत सारे फैक्टर्स दे लाइक लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर एंड क्लोरोफिल. बहुत सारे फैक्टर्स दोज अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. डू यू नो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल for the existence of all life on earth. Photosynthesis serves a crucial role in the food chain. The plants create their food using this process, thereby forming the primary producers. Photosynthesis is also responsible for the production of oxygen, which is needed by most organisms for their survival. अभी हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे. प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर वेरियस फिजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. वी ऑल नो दैट फूड वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी. देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फूड इनटू एनर्जी रिच एटीपी. एटीपी मतलब फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस का हम लोग इक्वेशन देखेंगे जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ऑक्सीजन के द्वारा and it converts into carbon dioxide and water
and also energy in the form of ATP. Plants में respiration takes place throughout the day. पूरे दिन में respiration होते हैं. जैसे कि हम देखे हैं photosynthesis only occurs in daytime, but respiration occurs throughout the day. पूरा दिन में होते हैं. The gaseous exchange happens through the small pores of the leaf, stomata and non-waxy pores of the stems named lenticles and helps art for the respiration. हम लोग अभी देखेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स है. कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होते हैं. ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. तो हम लोग अभी देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है. अ प्रोसेस बाय व्हिच कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एंड आफ्टर द ऑक्सीडाइजेशन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जिसमें 38 ATP एज एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते हैं. अभी देखेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? A process by which incomplete breakdown of glucose takes place in the absence of oxygen. मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में होते हैं, एंड इथाइल अल्कोहल जिसमें इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एंड उसके साथ साथ और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस एंड एनर्जी लेसर अमाउंट प्रोड्यूस होता है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से ओनली 2 ATP energies are produced. Thank you everyone for watching this video. Stay safe and stay healthy.